Hi guys, 150 days remaining for the Maharashtra MCA CET 2023 examination. So in this video we talk about how to start your preparation, what are the hurdles you will come across and how you have to deal with those hurdles, what is the chance of getting selected and what percentile you have to hit to get into the best MCA colleges in Maharashtra. So roughly 150 days का timeline बचा हुआ है. If you have started your preparation, well and good. Do practice, do learn the shortcuts, do work on your test series so that you can perform well in the examination. And if you have not yet started your preparation, so November चालू हो गया है, do start your rigorous preparation because December खत्म होकर Jan कब आएगा, next year 2023 कब चालू होगा पता नहीं चलेगा. So do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the best MCA colleges in Maharashtra. Alright, before we discuss further, let me tell you about the batches which we have launched at Maneuver. Online live class, if you want to join, then you can join Amalgam batch. You can contact our team on this number. But if you are Mumbai based, want to join us for the classroom coaching, Borivali, Dadar and Vasai, then you can contact on the respective number at the center. And this is what the complete teaching curriculum which you will be getting: live class or the classroom, doubt class, recorded videos, mentorship, 10,000 plus question you will be practicing, WhatsApp group, mock test and topic test. So all this information I have mentioned in the description. So if you have not yet started your preparation targeting for the best MCA colleges, then do prepare well for MCA CET 2023 examination. All this information regarding to the batches I have mentioned in description. Do check the description. And in case if you want to join online program, want to order books, test series, menuvideo.com/MCA entrance you can visit. Very first let's talk about the major hurdles which we come across. Number one hurdle is nothing but those who are weak in maths. जितने लोग का maths weak है एंड दोज हुआ क्रेबलिंग कि मैं मैथ्स कैसे करूँगा, आई हैव नो कनेक्शन विद द मैथ्स, या तो मैथ्स टफ जाता है आपको, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन, बट बिफोर दैट वर्क ऑन योर कंसेप्ट पार्ट. ठीक है. सो एक तो आपका एप्टीट्यूड वाला मैथ्स आता है, दूसरा आपका जो एडवांस मैथ्स आता है जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपके सेट थियरी, फंक्शन होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे, प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन होंगे. तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे. ठीक है. सो दोज हु हैव अ फोबिया फ्रॉम मैथ्स, आपको ये पहले ख़त्म करना पड़ेगा, maths fear. Second, less practice versus time saving challenge. Many people don't practice varieties of question and the same question 2 to 3 times. If you are doing this thing, then definitely you will end up with the saving of time. But अगर आपने practice ही नहीं की अच्छे से, तो जब आप question solve करोगे actual exam में या तो test में, तो time ज़्यादा लगेगा. So to save your time, आपको same type के question 2 से 3 बार minimum practice करनी चाहिए without fail. First time जब आप question solve करोगे, you will get the answer. बट लर्निंग कुछ नहीं होगी. सेकेंड टाइम जब आप करोगे तो आप दिमाग भी लगाओगे इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ क्या, एंड हाउ कैन आई सेव माई टाइम. मतलब थर्ड टाइम तक ये क्वेश्चन का टाइप पूरा अच्छे से क्लियर होगा, मतलब छप जाएगा यहाँ पे आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आई विल क्रैक दिस क्वेश्चन. फोबिया फ्रॉम द वीकनेस एंड वेस्टिंग टाइम ऑन द कम्फर्ट एरिया. मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यार ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, ये वाला टाइप के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है. अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो और उसको एज ए चैलेंज लो कि हाँ इसको मैं इम्प्रूव करूँगा. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया और द कम्फर्ट एरिया. मतलब वहाँ पे मतलब आपका कोई सेक्शन बहुत अच्छा हो गया है या टॉपिक अच्छा हो गया है तो फिर आगे बढ़ो, उसी पे और टाइम वेस्ट मत करो या उसको लेके ज़्यादा खुश मत हो जाओ और वीक एरिया को भूल जाओ, वो नहीं करना. ओके. फोर्थ इज़ नथिंग बट वेक प्रिपरेशन. यूट्यूब के वीडियोस देख करके या तो रैंडम स्टडी करके या तो गूगल करके रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करके प्रिपरेशन मत करो, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग 1 ईयर बिकॉज CET हैपन वंस इन ए ईयर. इस साल अगर स्कोर नहीं बना तो फिर अगले साल CET आएगा एंड वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट 1 ईयर. ओके. सो एटलीस्ट प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करो सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन विद द गुड स्कोर. 45,000 प्लस का कॉम्पिटिशन है रफली और सीट बहुत कम है. VJTI की सीट बहुत कम है. अगर आप VJTI टारगेट कर रहे हो, वैसे ही आपका सरदार पटेल हो गया एंड अदर कॉलेजेस. तो ये हडल, सो ऐसे कुछ भी हडल्स आ रहे हैं तो इनसे पहले रेड ऑफ हो. और भी कोई आपके प्रॉब्लम में हडल है तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ व्हाट other hurdle you people are facing so that I will make the video on the same so that it should help to other people as well. Alright, now let's talk about what are the things you should start on daily basis. Daily basis पे आपको क्या करना है. नंबर 1, न्यूज़पेपर रीडिंग. मैंने आपको द हिंदू न्यूज़पेपर बताया हुआ है. दिस इज़ व्हाट योर न्यूज़पेपर. तो इसका जो एडिटोरियल पेज है वो अपने को डेली बेसिस पे गो थ्रू करना है. वो इसलिए करना है कि जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं उसमें जो RC का लेवल आएगा, वो कैप का लेवल आएगा, वो या तो फिर द हिंदू से होगा या तो फिर वर्ड पावर मेड इजी. पेज नंबर 6 आपका एडिटोरियल पेज, ये वाला पेज पढ़ना है आपको, पेज नंबर 6. इसमें 2 एडिटोरियल आएंगे, ऊपर और नीचे. ये 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं द हिंदू से, बिकॉज आपके CET एग्ज़ाम में जो वो कैब होंगे वो द हिंदू से होंगे या तो फिर
ये वाली बुक से, वर्ड पावर मेड इजी। तो इसमें रेड वाली बुक आप लेना इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर द वोकैब, ठीक है। तो ये काम अपने को करना है। ग्रामर को लेकर के ऑन योर मैन्युअल डैशबोर्ड ऑल द वीडियोस गिवन, ऑल द हैंडआउट्स गिवन, इसको गो थ्रू करो अच्छे से। अगर आपने लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, सो आपको वीडियो का एक्सेस, आपको मॉक का एक्सेस, आपको ई बुक का एक्सेस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। तो उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर में जाओगे आपको वीडियोस और हैंडआउट्स दोनों मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपकी मैन्युअल की बुक है उसके अंदर सारे रूल्स दिए हुआ है, सेक्शन 1 एंड वोकैब का सेक्शन, ये चालू कर दो करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैथ्स को लेकर के जितने लोग वरीड हो, वीक है, पहले तो आपका कैलकुलेशन, फिर कंसेप्ट और प्रैक्टिस। तो मैथ्स में तो जितना पेन घसोगे उतना आपका वो टॉपिक अच्छा होगा, ठीक है। तो ये काम आपको करने हैं। अब आप इसको डेली बेसिस पे कर दो या वीकली बेसिस पे कर दो, बट हाँ अभी दिन के 3-4 घंटे मिनिमम पढ़ना चालू कर दो और मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज मैथ्स के टॉपिक भी ज़्यादा हैं और आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे, ओके। सो सिलेबस वाइज इफ़ यू टॉक अबाउट, तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है, तो फटाफट देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, एंड ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक, और ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं अपने को, ठीक है। उसके बाद लॉजिक 30 क्वेश्चन, ये स्कोरिंग है, मतलब यहाँ पे अगर आपने मार्क्स लूज़ किया तो फिर कहीं पे मार्क्स गेन करने का ऑप्शन डिफिकल्ट होगा। तो लॉजिक में तो कहीं मार्क्स लूज़ मत करो। ट्रेडिशनल, वर्बल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, ऑल दिस टॉपिक, ओके। इंग्लिश 20 क्वेश्चन, ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। इंग्लिश में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वर्ड पावर मेड इजी किया, आपने ग्रामर किया है, तो फिर यहाँ पे अच्छा स्कोर बनेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या कोई अदर मीडियम से हो, वर्नाकुलर मीडियम से हो, तो ये तो आप करो कंटिन्यूसली। रीडिंग 1 आरसी सॉल्विंग, ये भी लिख लो, 1 आरसी सॉल्विंग, और आपका वर्ड पावर मेड इजी, और ग्रामर तो करना ही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को लेकर अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आए थे वो कोडिंग लेवल के, बेसिक कोडिंग आई थी, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे, ओके। सो ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। सो अपने पास रफली 150 डेज़ का टाइम बचा है एग्ज़ाम को लेकर। नवंबर चल रहा है, मार्च में अपना एग्ज़ाम होगा। आइडियल टाइम जो MCSED का वो मार्च लास्ट वीक या तो फिर 3rd वीक बोल लो, ठीक है। तो ये 2 महीना है, इसको 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, 60 डेज़, 30 डेज़, ठीक है। तो मेजर, तो पहले अपना नवंबर और दिसंबर बेसिक रिसोर्सेस, उसके बाद आपका इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग, इस पे लगा दो। रिगरस प्रिपरेशन आपको करनी है जैन और फैब में, मतलब मेजर चंक्स ख़त्म कर देने, फिनिश मेजर चंक, शॉर्टकट, टाइम मैनेजमेंट, मॉक पे रिगरसली काम करना है, ये सारे काम आपको जैन और फैब में करना है, ठीक है। सो मार्च तक अपने को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना है, और इस समय अपन वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया को बेटर करेंगे, और मॉक स्ट्रैटेजी, वर्कआउट, स्कोर मैपिंग, ये सारे काम करने हैं अपने को, ठीक है। सो कोशिश करो कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, लेट इवनिंग का स्लॉट आपका प्रिपेयर हो प्रिपरेशन को लेकर के। 2 टॉपिक मिनिमम आप कोशिश करो कि मैथ्स के ख़त्म करूँ मैं इन 1 वीक, ठीक है। 2 टॉपिक पर वीक, लेट मी राइट है, 2 टॉपिक पर वीक मैथ्स, ठीक है। 1 टॉपिक इंग्लिश 1 वीक में, ओके। और लॉजिक का आप 1 से 2 टॉपिक लॉजिक। कंप्यूटर हम लास्ट में करेंगे, मतलब उसको हम टच करेंगे फरवरी ऑनवर्ड्स, मतलब जैन एंड या फैब के ऑनवर्ड्स आप कंप्यूटर टच करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी नवंबर, दिसंबर और जैन, 3 महीने का टाइम लगा दो आप ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन में। एक बार अपनी प्रिपरेशन हो गई, मेजर चंक्स हमने कवर कर लिया, तो हम दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स फुल लेंथ मॉक लिखना भी चालू कर देंगे, ठीक है। बट अभी मैं मॉक के लिए एडवाइस नहीं करूँगा, डोंट स्टार्ट नाउ, अभी टाइम है, बट अभी के लिए ये प्रिपरेशन आपकी चालू करो। एंड विद दिस माइंड और प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि 1 to 5% जनता को ही ये बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। VJTI, विवेकानंद, SP, के सोमैया, SIS, और भी जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ये जनता ही एडमिशन लेगी, बिकॉज उतनी सीट ही नहीं है। बाकी और भी कॉलेजेस हैं, बट हाँ टॉप मोस्ट में एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा CT एग्ज़ाम में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। 150 दिन बचा हुआ है, लग जाओ, फुल फ्लेज में प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपने मैन्युअल ज्वाइन किया हुआ है तो ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको प्रिपरेशन को लेके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सो बिफोर यू कम फॉर द क्लास, चाहे आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, वीडियो लेक्चर्स देख के आना है, फिर आपको लेक्चर में आना है, फिर आपको बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड टॉपिक टेस्ट टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन। ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और रिविज़न करते रहना है हर टॉपिक।
सो आज आपने टॉपिक को प्रैक्टिस किया तो मेक श्योर उसका टेस्ट लिख के इसी वीक में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं 2 हफ्ते बाद उसका टेस्ट लिखूंगा फिर बाद में रिवाइज करूँगा, आप भूल जाओगे, इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। एंड हो सके तो हर सेक्शन की अलग अलग बुक बना लो आपका जो नोट्स बनाने के लिए। एक एक पेज का हर टॉपिक का मैक्सिमम नोट्स बनेगा, 1 से 2 पेज, तो अपने हिसाब से नोट्स बना लो। वही नोट्स को आप एग्ज़ाम के 1 हफ्ता 10 दिन पहले रेफ़र करोगे, ठीक है। एंड बैचेस को लेकर के 23 24 यू कैन चेक आउट लाइव क्लास एंड क्लासरूम। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। MCA एंट्रेंस करके अलग से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे MCA स्पेसिफिक वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। चलो, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।